Hello students, hope you all are fine. I'm your science teacher here. So now students, in today we will start our new chapter, chapter number 7, housing and clothing. So students, in this chapter we will study about different type of houses. We should study about temporary houses, what is permanent houses and what are the condition of an ideal house and what which types of clothes we wear in different seasons. We will study about different seasons also. Now students, look at the learning points that we will discuss in our chapter is that first one, house, temporary house, roof of houses, clothes we wear, types of houses, special houses and ideal house. Now students, get ready for the exercise. Write T for permanent and T for temporary house. Look at all these images and identify which house is a permanent house and which house is a temporary house. So now students, identify and write T for permanent and T for temporary house. First image is shown is that a caravan. Caravan is a temporary house, so write T here. Now look at the second image. Second image you shown is a bungalow. Bungalow is a permanent house, so write P here. Now look at the third image. Third image you shown is that a stilt house. Stilt house is a temporary house, so write T here. Now last image आपको शो कर रखी हाउस बोट की। बच्चों हाउस बोट भी एक टेम्परेरी हाउस होता है, so write T here. Now students, let's begin the chapter with our first topic, house. We all need a house to live in. A house keeps us safe from the heat, cold, rain, animals, insects, thieves, etc. Houses can be built using different materials such as bamboo, wood, bricks, cement, etc. आप सभी को पता है कि हम सब कहाँ पे सेफ रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। हम सबको रहने के लिए क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है। बच्चों आप देखते होंगे अपने आसपास डिफरेंट टाइप के हाउसेस को। जो ये डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं, इनको बनाने के लिए जो मटेरियल लगा होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। इसी बेसिस पे हमने हाउसेस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है। बच्चों जो हाउस है वो आपको गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, थीफ से या वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है। तो इसलिए आप अपने हाउस में, शेल्टर में अपने आप को सेफ या प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। Now students, let's start with types of houses. People make different type of houses to suit their needs. लोग जो है अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने हाउस को बिल्डअप करवाते हैं। नाउ स्टार्ट विथ पक्का हाउस. In cities and towns, people live in a house made of cement, bricks, iron and wood. These houses are strong and last long. आप सभी को जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, जो पक्का हाउस होते हैं बच्चों वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। इन ये ज्यादातर आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। जो पक्का हाउस है उनको बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल लगता है, जस्ट लाइक सीमेंट, स्टोन, ब्रिक या हम कह सकते हैं स्टील और आयरन रॉड। नाउ दे आर कॉल्ड अ पक्का हाउस और परमानेंट हाउस। बच्चों हम पक्का हाउस भी कहते हैं इसे या परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं। नाउ हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द पक्का हाउस. Bungalows, flats, multi-story buildings are some examples of permanent houses. Now look at the all images. Here is the image of bungalow, flats and multi-story building. So come to the next category of the house, kacha house. Kacha houses are mostly made of wood, mud, straw, clay and bamboo. They are also called huts. They are mostly found in villages. Kacha houses are neither strong nor long lasting. They can be broken down and rebuilt easily. They are temporary houses. बच्चों अब हम समझते हैं कच्चा हाउस कौन से होते हैं। कच्चा हाउस वो होते हैं जो किससे बने होते हैं? क्ले से, बैम्बू से या मड यानी मिट्टी के बने होते हैं। कच्चा हाउसेस को हम हट यानी झोपड़ी भी कह सकते हैं। आपको जो ये हट है वो कहाँ पे नजर आती है? ये विलेजेस में होती है, ज्यादातर गाँव में होती है। और बच्चों ये हमारी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, या कोई थंडर स्टॉर्म आता है या तेज हवा चलती है तो ये हमारी डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाते हैं हमारे कच्चा हाउस। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम कच्चा हाउसेस को क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस कहते हैं। तो हियर आर द इमेजेस ऑफ द हमारे टेम्परेरी हाउसेस, हट एंड बैम्बू हाउस. नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, टेम्परेरी हाउसेस. Some people keep moving from one place to another. They build houses that can be moved. Such houses are called temporary houses. बच्चों जो कुछ लोग होते हैं वो एक जगह पे सेटल नहीं होते, वो क्या करते हैं किसी ना किसी कंडीशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। तो इसके
लिए उनका जो हाउस वो बिल्डअप करते हैं वो टेम्परेरी होता है या मूवेबल होता है. So here are the some categories of the temporary houses. Let's start with caravan. A caravan is a mobile house. जो caravan होता है वो mobile house होता है. It can be moved easily from one place to another. Gypsies and people who work in a circus usually live in these houses. बच्चों जो कैरावन आपको इमेज शो कर रखी कैरावन की एक मूवेबल हाउस होता है जिसे हम मोबाइल हाउस भी कह सकते हैं. जो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता वो एक कैरावन में लिव करते हैं. जस्ट लाइक जिप्सीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं या जो लोग सर्कस में काम करते हैं उनका एग्जांपल हम ले सकते हैं. नाउ कम टू द टेंट. अ टेंट इज यूजुअली मेड ऑफ कैनवस और क्लॉथ. It is used by campers, nomads and soldiers. बच्चों here is the image of the tent. जो टेंट होता है वो कैनवस का बना होता है या क्लोथ का बना होता है. हमारा जो टेंट जो है कौन लोग बिल्डअप करते हैं जैसे सोल्जर्स हो गए वो टेंट बिल्डअप करते हैं या नोमैड्स हो गए या कैंपर्स हो गए जो कैंपिंग करने जाते हैं वो टेंट को बिल्डअप करते हैं. ये भी एक हमारा टेम्परेरी या मूवेबल हाउस होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हाउस बोट. A houseboat is a house on a boat. जिस तरीके से आपको नेम से पता चल रहा है हाउस बोट का मीन्स होता है कि जो हमारा हाउस है घर बना हुआ होता है वो बोट के ऊपर होता है. इट इज ऑल्सो अ मूवेबल हाउस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोटिंग हाउस. इसे हम फ्लोटिंग हाउस कहते हैं. इट इज फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला. बच्चों जी आपको हाउस बोट देखने को मिल सकती है ये कश्मीर और केरला स्टेट में देखने को मिल सकती है. नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द हाउस बोट यू शोन हियर. नाउ कम टू द टॉपिक स्पेशल हाउसेस. अब हम समझते हैं अभी हमने समझा कच्चा हाउस के बारे में पक्का हाउस के बारे में और कौन से हमारे टेम्परेरी हाउसेस होते हैं उनके बारे में समझा. कुछ हमारे स्पेशल हाउसेस भी होते हैं जो स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिल्डअप किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. नाउ स्टार्ट विद इग्लू. एन इग्लू इज अ हाउस बिल्ड ऑफ स्नो. बच्चों इग्लू हमारा बर्फ का घर होता है जो किससे बना होता है स्नो से बना हुआ होता है. इट इज फाउंड इन वेरी कूल प्लेसेस. जो इग्लू है ज्यादातर बच्चों जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहां पे इग्लू बनाए जाते हैं. यूजुअली एस्किमोस मेक इग्लूज टू लिव इन. बच्चों इग्लू कौन मेकअप करता है एस्किमोस बनाते हैं रहने के लिए. नाउ लुक एट द इमेज ऑफ इग्लू. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टिल्ट. A stilt house is made on long pieces of wood or metal. जो स्टिल्ट हाउस होता है वो हमारे लकड़ी के जो हमारे लॉक्स होते हैं उसके ऊपर बनाया जाता है या मेटल के लॉक्स के ऊपर बनाया जाता है. It is found in places where it rains very heavily and floods are common. Water cannot enter or wash away these houses as they are high above the ground. Now students look at the image of this stilt house. ये आपको शो कर रखा है इमेज में. जो ये हाउस बना रहा है वो किसके ऊपर है लॉक्स ऑफ वुड के ऊपर. ये उन जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है. जो ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे जो बारिश का पानी है वो घर के अंदर ना एंटर कर पाए इसलिए वहां पे बैम्बू के लॉक्स के ऊपर घर को बनाया जाता है जिससे कि वो रेन वाटर घर के अंदर एंटर ना कर पाए और वो सेफ रहे. दिस इज कॉल्ड एन स्टिल्ट हाउस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक रूफ्स ऑफ हाउसेस. अब हम समझते हैं हाउसेस की जो रूफ्स होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से वेरी करती हैं और हम उन्हें क्यों डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाते हैं. द रूफ इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ए हाउस. आप सभी को पता है रूफ जो होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है किसी भी घर का यानी छत. डिफरेंट हाउसेज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ्स. हर एक अलग अलग हाउस के अलग अलग टाइप की रूफ्स होती हैं. पीपल लिव इन माउंटेन्स मेक हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ. जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो अपने घरों की स्लोपिंग रूफ्स बनवाते हैं. दी स्लोपिंग रूफ्स हेल्प रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ. बच्चों जो लोग हम कहाँ पे रहते हैं पहाड़ पे रहते हैं तो वहां पे जो स्नोफॉल होता है उससे अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसकी घर की छतें यानी रूफ्स को स्लाइडिंग वे में बनवाते हैं जिससे कि कोई भी स्नो वहां पे कलेक्ट ना हो पाए और जो सारा स्नो है इजिली स्लाइड ऑफ हो जाए. नाउ पीपल लिविंग इन द प्लेन्स मेक देयर हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स. जो बच्चों लोग प्लेन्स पे रहते हैं वो कैसे रूफ्स बनवाते हैं फ्लैट रूफ्स बनवाते हैं क्योंकि देयर इज नॉट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर और स्नो. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस. हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ. कुछ घर होते हैं जिनकी स्लोपिंग रूफ्स होती हैं. हाउस विद अ फ्लैट रूफ. कुछ घर होते हैं जिनकी फ्लैट रूफ्स होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एन आइडियल हाउस. अ हाउस दैट इज suitable to one's need is an ideal house. बच्चों एक ऐसा घर जो हमारी सारी नीड्स को पूरी कर रहा है फुलफिल कर पा रहा है वो हमारी एसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है हम उसमें इजिली सर्वाइव कर पा रहे हैं वो हमारे लिए आइडियल हाउस होता है. An ideal house should let in sunlight and fresh air. आइडियल हाउस वो होता है जिसमें सूरज की रोशनी आसानी से आ पाती है और ताजी हवा भी आसानी से हमारे घर के अंदर एंटर कर पा रही है.
द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज मस्ट बी क्लीन, और उसके आसपास की जगहें कैसी हैं, साफ होनी चाहिए। देयर शुड बी प्लांट्स अराउंड इट, और हमारे घर के आसपास क्या प्लांट्स हैं, तो ये हमारे एक आइडियल हाउस की डेफिनेशन होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लोथ्स वी वेयर। अब हम समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में हम किस कैटेगरी के क्लोथ्स, किस टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। आप सभी को पता है जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें किससे बचाते हैं। आप क्लोथ्स पहनने के बाद स्मार्ट तो लुक करते हैं, बल्कि वो हमें सर्दी से, गर्मी से, बरसात से या इंसेक्ट के बाइट्स होने से बचाते हैं। तो क्लोथ क्या करते हैं, हमें फील सेफ भी करते हैं और हमें स्मार्ट भी बनाते हैं। नाउ look at these points. Which type of clothes we wear in different seasons? Start with first point. Clothes make us look smart too. We wear different clothes in different seasons. कपड़े पहनने से आप स्मार्ट तो दिखते ही हैं, बल्कि किस सीजन में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस अकॉर्डिंग कपड़े पहनने हैं, वो डिसाइड करता है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन। नाउ लुक एट द सेकंड पॉइंट, इन द समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स। बच्चों, हम समर में, गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं टू कीप आवर बॉडी कूल। कॉटन क्लोथ सोक अप स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। बच्चों क्यों? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो गर्मी में हमारी स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट, इन द विंटर द वेदर इज कोल्ड। आप सभी को पता है जब सर्दी का मौसम आता है, वी नीड टू कीप आवर बॉडी वार्म। हमें अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम कैसे क्लोथ पहनते हैं? तो वी वेयर वूलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन द रेनी सीजन वी नीड टू कीप आवर क्लोथ्स ड्राई। अब जब बारिश का मौसम आता है तो हम बारिश से बचने के लिए हम क्या वेयर करते हैं? वी कवर आवर ड्रेसेस विद अ रेनकोट। हम रेनकोट वेयर करते हैं, जिससे हमारी जो ड्रेस होती है वो क्या वेट नहीं हो पाती और हम ड्राई रहते हैं। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज वाटरप्रूफ। आपको पता है जो रेनकोट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, जो वाटरप्रूफ होता है और हमारी ड्रेस को गीला होने से बचा पाता है रेनी सीजन में। वी ऑल्सो वेयर गमबूट्स एंड यूज एन अम्ब्रेला ऑल्सो। जब आपको बारिश में कहीं बाहर जाना होता है तो आप अम्ब्रेला भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, ये आपको गीला होने से बचाता है। नाउ लुक एट द इमेजेस ऑफ द डिफरेंट सीजन। फर्स्ट इमेज यू शोन इज दैट इन द समर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इमेज में आपको समर सीजन दिखा रखा है। समर सीजन में आप कॉटन क्लोथ पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ आपकी बॉडी को कूल रखते हैं। लुक एट दी सेकंड इमेज, इन दी विंटर। विंटर सीजन में आप वुलन क्लोथ पहनते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। लुक एट दी थर्ड इमेज, इन दी रेनी सीजन यू वेयर गम बूट्स, रेनकोट एंड कैरी अम्ब्रेला। सो कीपर्स, तो इससे क्या होता है, आप अपने आप को सूखा रख पाते हैं, गीले नहीं होते, कीपर्स ड्राई। नाउ कम टू द मोरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा उसे एक बार देखते हैं। हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। They provide comfort to our lives and make us look smart. We must take care of them. Now students, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा हाउसिंग यानी जो शेल्टर होता है और क्लोथिंग जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, ये दोनों ही हमारी बेसिक नेसेसिटी में आता है। तो स्टूडेंट्स, हमें अपने घर का और किस तरीके से हम क्लोथ वेयर कर रहे हैं उन दोनों बातों का ही हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इससे हम स्मार्ट तो लोग करते ही हैं, बल्कि ये हमारे जो शेल्टर होता है या हमारे जो क्लोथ्स होते हैं जो हम वेयर करते हैं, वो हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से या हमारे डिफरेंट एटमॉस्फेयर से या इंसेक्ट बाइट से या वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से हमारा शेल्टर हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा। नाउ स्टूडेंट्स, let's have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter is we all need a house to live in। हमने पढ़ा हम सभी को एक घर की जरूरत होती है रहने के लिए। In cities and towns people live in a house made of cement, bricks, iron and wood। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा जो शहरों में लोग रहते हैं उनके घर किससे बने होते हैं? ईंट से, सीमेंट से, ब्रिक्स से, आयरन रॉड से। एन इग्लू इज अ हाउस बिल्ट ऑफ स्नो। हमने पढ़ा जो इग्लू है वो एक बर्फ से बना हुआ घर होता है जिसमें एस्किमोज रहते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ इन द समर। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को कूल रख पाते हैं। क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट टू। कपड़े पहनने से हम अपने आप को स्मार्ट भी लुक वाइज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.